2. Okay, show verse 2. दूसरा Psalm 1:2. भजन 1 उसका 2. Okay, but so this is what he doesn't do. Okay, 1 में जाना, लास्ट का मैंने नहीं बताया, लास्ट का. Nor sits in the seat of scornful or mockers. ना ही ठट्ठा करने वाला, मजाक उड़ाने वालों की मंडली में बैठता है. जब मैं अपनी कलीसिया में था ना, तो वहां पे कुछ यंग बच्चे थे, जब पास्टर प्रीच करते थे तो मजाक उड़ा रहे होते थे बस. When I was in my church and there were some young guys, when the pastor would preach, these guys would mock. So मैं खड़ा हुआ, I got up. मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा. I said I will not sit तो with वो you. मेरा मजाक उड़ाने लग गए. They started to mock me. वो तब तक आपके साथ हैं They are with you जब तक आप उनकी अनगॉडली चीजों में उनके साथ पार्टनर हो. जिस दिन आप सत्य के लिए खड़े होगे, आप भी उनके दुश्मन हो जाओगे. They are with you till the time you are partnering in their ungodliness. The day you stand for the truth, they will be against you. अब आपको डिसाइड करना है, कौवों के साथ रहोगे तो कौवा बनोगे, Now you decide. और If you, उकाबों के साथ रहोगे तो उकाब बनोगे. चॉइस आपकी है. आप परमेश्वर आपसे चॉइस नहीं लेता. if you fellowship with crows, you'll be a crow. If you fellowship with eagles, you'll be an eagle. Choice is yours. Amen. Okay, verse 2. But his delight. Now, ये वो नहीं करता, This धन्य he है. does not अब वो do. क्या करता है? This blessed man does not do this, but now he does this. अब वो क्या करता है? What His does he do? delight is in the law of the Lord. उसका आनंद परमेश्वर की व्यवस्था में है. He draws his pleasure, his affection from the word of the living God. उसको मजा आता है परमेश्वर के जीवित वचन से. And in his law, in his word, he meditates day and night. और उसके वचन पर वो दिन रात मनन करता है, ध्यान ओ, करता अगर आप बुद्धिमान हो तो आज ये बात सुन लो. है. If you are wise, then hear this today. प्लीज मेरी बात को सुनो. Please hear me out today. ये चीज अगर आपने कर ली, If you did this, आप एक ब्लेस्ड जीवन जियोगे इस पृथ्वी पे. you will live a blessed life on this earth. न्यूज चैनल पे नहीं, Not on the news channel. आंटियां जो बोल रही हैं पड़ोस में, वो नहीं. Not what the aunties in the neighborhood are saying. उसके वचन पर वो दिन रात मनन करता But he है. meditates on God's word day and night. किस पर मनन करता है? On what does he meditate? परमेश्वर के वचन पर वो दिन रात मनन करता He है. meditates on the word of God day and night. क्या होता है वचन पर मनन करने What से? happens when you meditate on God's word? See, we have to understand, this is not Eastern meditation. ये Eastern meditation नहीं है. ये शून्य में बैठना नहीं है. This is not sitting in zero. We are not meditating on nothing. हम खोखलेपन पर मनन नहीं कर रहे, कुछ नहीं है उस पर मनन नहीं कर रहे. We are meditating on the word. हम वचन पर मनन कर रहे हैं. जब आप वचन पर मनन करने लग जाते हो, When you start to meditate on God's word, तो परमेश्वर आपके थॉट्स बदलने लग जाता है. God starts to transform your और जब thoughts. आपके विचार बदलने लग जाते हैं, तो जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है. And when your thoughts start to get transformed, your life starts to change. Some people are fasting for last 50 years as a religious routine and nothing has changed. कुछ लोग 50 साल से उपवास कर रहे हैं धर्म के मारे और कुछ नहीं बदला जिंदगी में आज तक. हम लोग एक मीटिंग में गए थे बहुत पहले गाजियाबाद में. Long time ago we went for तो a वहाँ meeting. पे in Ghaziabad. मीटिंग हुई, उसके बाद वो समोसे और चटनी करके उन्होंने प्लेट में दी. तो After बगल the- में मेरे एक भाई थे, मैंने कहा खाइए आप. After the meeting they gave samosas to कह रहे everybody. नहीं नहीं. I मैं- offered to a brother. He said no. मैंने बहुत लंबे उपवास करे, कह रहे मेरी आंतड़ियाँ बिल्कुल चिपक गई हैं. He said I fasted so long that my फिर वो intestines मुझे are बताने stuck लगे together. मेरे शरीर में ये बीमारी है, ये है, ये है, और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने परमेश्वर के लिए उपवास किया. So he started to tell me I have this sickness in my body, that sickness, and all this happened because I fasted for God. ओके. ठीक है. जब तक वचन हमारे अंदर नहीं जाएगा, परमेश्वर का प्रकाशन भी हमें नहीं आएगा. Until the word goes in our hearts, the revelation of God will not come to us. आज क्यों मसीहत की ये हालत है? मैं आपको बताऊं एक बात. Why is Christianity in such a place today? मैंने आपको बार बार बताया है. I've told you again and again. अभी बोल दो, हर किसी को एक पर्सनल भविष्यवाणी का शब्द मिलेगा. Say that everybody will get a personal prophetic word.
लोग चेयर से नहीं हिलेंगे अपने, People will not move from their chairs. मगर जो वचन है उसको हमने छोटा जाना है. But the word they have despised. A blessed man delights in the word of the living God. एक धन्य मनुष्य परमेश्वर के जीवित वचन में आनंदित रहता है. किसमें? आप जानते हैं, let me tell you a study. This is the water Bible says. This is the living water. ये जीवित जल है बाइबल कहती है. जानते हैं आप? एक स्टडी में पता चला है It's found in a study कि जो पानी है ना, जो आपके ब्रेन के रीजन को अफेक्ट करता है जब आप पानी पीते हो, वही आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है जब आप चीनी खाते हो या मीठा खाते हो. ओके, या the water affects the same region of your brain as when you eat sugar affects the region of your brain. कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं. समझाता हूँ. Let me explain. इतना जोर मत डालो, समझाता हूँ. यानी कई बारी जब आपका शरीर मीठे के लिए क्रेव कर रहा है, वो एक्चुअली पानी मांग रहा है. So many times when your body is craving for sugar, it's actually asking for water. Can you put that study? I have. Okay, so आपका जो ब्रेन रीजन है, okay, सुन रहे हैं आप मेरी बात? That brain region, पानी आपको सस्टेन करता है, मीठा आपको सेटिस्फाई करता है, मीठा आपको मतलब, मगर एक्चुअली में आपकी बॉडी मीठा नहीं मांग रही थी. the water sustains you, but your body was craving for sweets, but your body was not really asking for sweets. पानी परमेश्वर ने बनाया है. God has made water. ये जो आज प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, ये हमने मीठा प्रोसेस करा है. The processed food we eat. What am I saying? Hear this. Many times your innermost man is longing for the water of the word. कई बार. But we don't, because we cannot discern that, we try to give it Netflix, we try to give it a sexual relationship, we give it drugs, we give it all these things, and they never satisfy us, because what we were actually longing for was the water of the word. हमारा भीतरी मनुष्य उस वचन के पानी की मांग कर रहा होता है, लेकिन लोग उसको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं नेटफ्लिक्स के थ्रू, सेक्सुअल रिलेशनशिप के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू, अलग अलग बातों के थ्रू, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके भीतरी मनुष्य को असल में वो वचन का पानी चाहिए था. Okay, I don't know if, have I sent you that study? I did not? Oh, I'm so sorry. I was just studying that study. मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था, मैं आपको भेजना भूल गया, पर आप खुद गूगल में देख सकते हैं. You can check it on Google. जब तक आप वचन में नहीं जाओगे ना, सेटिस्फाई, बड़ी गाड़ी सेटिस्फाई नहीं करेगी. Until you go into the word, you will not be satisfied. A big car will not satisfy. बेस्ट मॉडल ले लो, 6 महीने बाद एक नया मॉडल आ जाएगा. You buy the best model, 6 months later a new model will come और out. फिर आप आपस में बात करोगे, हाय 6 महीने रुक जाते तो ये वाला मॉडल आ. And then again you will say, oh, if और you जब आप waited बात 6 ही कर months. रहे होगे तो दूसरी कंपनी का एक और मॉडल आ And जाएगा. while you're talking, another company launches another model. The only thing that will satisfy us is when you find your delight in the word of the living God. Blessed is the man who delights in the law of the Lord, who delights in the word of God, and in it he meditates day and night. एक ही बात है जिससे हम संतुष्ट हो सकते हैं. धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर के वचन में आनंद पाता है, उस पर मनन करता है, दिन और रात उसमें आनंदित रहता है. ध्यान से सुनो क्या होता है. Hear carefully what happens. Okay, put Isaiah 55:8. यशायाह 55:8. परमेश्वर कहता है, my thoughts are not your thoughts. परमेश्वर कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार Now जैसे hear नहीं. this. That सुनिए. means God has thoughts. इसका मतलब परमेश्वर के विचार हैं. God thinks. परमेश्वर सोचता है. We have thoughts. हमारे पास विचार हैं. God has thoughts. परमेश्वर के पास विचार हैं. We have thoughts. हमारे पास भी विचार हैं. But God said, my thoughts are not your thoughts. लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचारों जैसे नहीं हैं. As heaven is high above the earth, so are my thoughts. जैसे स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे विचार तुम्हारे विचारों से तो ऊंचे हैं. ज्यादा फर्क नहीं है हमारे और परमेश्वर के So, विचारों में. there isn't great difference in our thoughts. In बस God's स्वर्ग और पृथ्वी का फर्क है. only heaven and earth is Now the hear difference. this.
Because you were born on this earth, क्योंकि आप इस पृथ्वी पे पैदा हुए, you have earthly thoughts. आपके विचार दुनियावी हैं, You think earthly. आप पृथ्वी के अनुसार You सोचते see हो, things with an earthly perception. आप पृथ्वी की सोच रखते हो, उस The हिसाब से knowledge रखते that you हो। got was earthly. जो ज्ञान आपको मिला वो पृथ्वी के अनुसार था। But if you get saved लेकिन अगर आपने उद्धार पा लिया and don't change your thoughts, और अपने विचार नहीं बदले, you will be a new creation with earthly thoughts. आप एक नई सृष्टि होगे जिसके दुनियावी विचार है। So you will see the things in the same way. तो आप चीजें वैसे You ही will देखोगे, talk the same वैसे ही language. बात करोगे, You will be afraid like the people in the world get afraid. आप दुनिया के लोगों की तरह डरोगे, Because the content of your thoughts, because your thoughts are controlling your life. क्योंकि आपके विचारों में वही बातें अभी भी चल रही हैं और आपके विचार आपकी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं हाथ उठाने में क्या जा रहा है? सो परमेश्वर के भी विचार हैं। आप कभी सोच सकते हो परमेश्वर भी विचार सोचता है। So God has thoughts. Can you imagine God thinks? और जो आपके विचार है ना वो आपके शब्द बन जाते हैं। And your thoughts become your words. Okay? God's thoughts became His words. If you want to know how would I know what are God's thoughts? Read your Bible. जैसे आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, परमेश्वर के विचार भी परमेश्वर का वचन बन गए। अगर आप जानना चाहते हो परमेश्वर कैसा सोचता है तो उसके वचन को पढ़ो। So सोचो जब आप वचन पर मनन करना शुरू करते हो, So when you start to meditate on God's word, वचन क्या है? What is the परमेश्वर के विचार। जब आप thoughts of परमेश्वर के विचारों पे मनन करने लगते हो when you meditate on God's तो एक thoughts, सॉफ्टवेयर अपडेट होने लग जाता है। a software update happens. The thoughts of God परमेश्वर starts के to विचार download in your mind and you start to become a carrier of God's thoughts. You start to see things differently, you start to speak differently, you start to act differently. परमेश्वर के विचार आपके जीवन में काम करने लगते हैं, आप चीजों को अलग रूप से देखने लगते हो, बोलने लगते हो, चलने लगते हो उनके विचारों, उस परमेश्वर के विचारों के हिसाब से। ओ हालेलुया। हे प्रभु मेरी मदद कर। लोगों को क्या चाहिए धर्म में? टोटका। People in religion, they want a यूं quick करो। fix. मेरा जीवन चेंज कर दो अपोस्टल जी। Do something and change my life, apostle. अरे पहले विचार बदलो अपने। First, change your thoughts. विचार नहीं बदलोगे If you don't change your thoughts, वैसे ही रहोगे। you will stay the same. आओगे मीटिंग में हिलोगे, गिरोगे, You'll come to the meeting, shake, fall, उल्टी करोगे, vomit, फिर घर जाओगे, फिर वही होगा। go back home, same things will happen. क्यों? Why? क्योंकि विचार वही है। Because thoughts are the same. As a man thinks in his heart, so is he. When you change the thoughts at the core of you, you will change. जैसा एक व्यक्ति अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है। जब अपने भीतर के विचार आप बदल दोगे तो आप बदल जाओगे। Amen? Can you imagine what will happen to your life if you start to carry God's thoughts? आप कल्पना कर सकते हैं आपकी जिंदगी का क्या होगा जब आप परमेश्वर के विचार रखोगे अपने अंदर। God has never known defeat. परमेश्वर को हार नहीं पता क्या होता है। The Bible says, blessed be the Father who always leads us in triumph in Christ Jesus. That means when I hear His thoughts, when I meditate on His word, He will teach me how to be victorious in every situation. बाइबल कहती है धन्य है वो पिता हमारा परमेश्वर जो हमें मसीह में हमेशा जय में लेके चलता है। जब मैं उसके विचारों पर मनन करता हूँ वो मुझे सिखाएगा कि मैं कैसे हमेशा जय में चलता चला जाऊं। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? इसीलिए आज कई मसीह शहर चेंज करेंगे, देश बदल देंगे, लाइन में खड़े रहेंगे 20-20 घंटे कि कोई उनके सर पे हाथ रख दे, मगर अपने मन के विचारों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। So many believers today, they will change their city, they will change their country, they will stand in line for hours so someone would lay hands on them, but they will not change the thoughts that rise up within them. Do you know what insanity is? अब जानते हैं पागलपन क्या होता है? Insanity is doing the same thing and expecting a different result. पागलपन होता है एक ही चीज को दोहराते हुए एक अलग परिणाम मिलेगा इसकी उम्मीद करना।
यानी अगर आप कलीसिया आ रहे हो और आपके विचार, एक्चुअली दैट इज व्हाट रिपेंटेंस मींस. रिपेंटेंस मींस मेटानोया. रिपेंटेंस मींस द चेंज ऑफ योर माइंड. व्हेन योर थॉट्स चेंज, यू हैव एक्चुअली रिपेंटेड. रिपेंटेंस का असल अर्थ ये है जब आपके विचार बदल जाते हैं, आप मन फिराते हैं, जैसा पहले सोचते थे अब वैसा नहीं सोचते, आपका मन नया हो गया, ये रिपेंटेंस है. Amen. You know, मैं कभी प्रभु कहता हूँ, प्रभु मैं क्या करूं कि मैं तेरे लोगों को तेरे वचन की तरफ ले जा सकूं. I tell the Lord, Lord, what can I do कि उनको that, तेरे वचन का महत्व पता चले, that your people would know the importance of your word, कि वो तेरे वचन को तुच्छ ना जाने. that they would not despise your word. I know people will misunderstand me, but let me say this. It's unhealthy Christianity where people run after a man of God and don't honor the word of God that they have in their hands. ये अस्वस्थ है या अस्वस्थ मसीहत है जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के दासों के पीछे भागते हैं लेकिन उस वचन का आदर नहीं करते जो उनके हाथ में उनके पास है. यीशु मसीह ने एक टीचिंग दी, लोग बुरा मान गए और छोड़ के जा रहे हैं. Jesus gave a teaching, people got offended and left. तो यीशु 12 चेलों की तरफ मुड़ा और उसने कहा, हाँ भाई तुम्हें भी जाना है, अगर जाना है तो बहुत सही मौका है. So Jesus turned to the disciples, the 12, and said, if you want to go, this is a good time. पतरस ने जो कहा मुझे इतना प्यार है उस चीज से. What Peter said, I really love it. पतरस ने ये नहीं कहा, हे प्रभु तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं, क्योंकि अंधों की आंखें तुझे छोड़ कौन खोल सकता है. Peter did not say, where should we go, Jesus? Only you open blind eyes. ओ यीशु, मरे हुओं को तेरे अलावा कौन जिला सकता है. Oh Jesus, who can bring back the dead like you do? ओ यीशु, बहरे कानों को तेरे अलावा कौन खोल सकता है. Jesus, who can open deaf ears like you do? पतरस ने ये नहीं कहा. Peter did not say that. पतरस ने कहा, तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन का वचन तेरे पास है. He said, where should we go, Lord? Because you have the word of life. You have the words of eternal life. अनंत जीवन का वचन तेरे ही पास है. जिस दिन वचन आपका एंकर हो गया, कोई तूफान, कोई आंधी, कुछ भी आपको परमेश्वर के वचन से, इस राज्य से हिला नहीं सकता. The day the word of God becomes your anchor, no storm and nothing would be able to shake you out of your life, out of this word.